गोपाल गुरु गुरपूरन नारायण है। गुरदयाल समरथ गुरु गुरु नानक पतत उदाहरण है। अता बख्शियो पाक परवरदिगार रही मस्त रोजी देहो हर दयार। अमा बख्शो बख्शिंद दस्तगीर रजा बख्श रोजी देहो दिल पाजी। चवर छतर तखत दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी अंदर सज बैठी गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी फतेह प्रवान करो। वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा पार्क एवेन्यू विखे सत्कारयोग संत बाबा हरी सिंह जी रंधावे वालियां पासों आप संगत ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की लड़ीवार कथा सरवण की है। आओ श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज की वडियाई करके अपने समय नूं जीवन नूं सफला करिए। कल दे दीवाना विच गुरु साहिब दे प्रकाश बाबत और बाल अवस्था दीआं कुछ साखियां बाबत आप संगत दे नाल सांझ पाउणा कीती सी। गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह अपनी पावन बाणी दे विच गुरु दी अजमत बाबत गुरु दी ताकत बाबत बयान करते ने। गुर की महिमा बेद ना जान है तुष मात सुन सुन वखाण है। चाहे वेद ने चाहे धार्मिक ग्रंथ ने गुरु की महिमा का कोई अंत नहीं पा सकता। क्यों अंत नहीं पैंदा? कहंदे पार ब्रह्म अपरंपर सतगुर जिस सिमरत मन सीत लायना। पार ब्रह्म का गुरु साहब स्वरूप ने ते जिहदा नाम ही पार ब्रह्म है, भाव जिहदा पारला कंढा ही नहीं है। समुंदर का कंढा ते लभ जाता है, परमात्मा का पारला कंढा नहीं लभदा। ऐसा उहदा विस्तार है, दायरा बेअंत है। सो उस बेअंत का स्वरूप है गुरु नानक गुरु हरगोबिंद साहब। तो अंत इसलिए नहीं आउंदा। भाई साहब भाई नंद लाल ने गुरु साहब की वडियाई विच बोल कहे ने, शारक है रहमतश आलमिया अफरोज वा बारिक है अजमतश जुल्मिया सोज। कहंदे गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह तुहाडी रहमत तुहाडी किरपा तुहाडी जिहड़ी मेहर है वो लोकाई दे जीवन रोशन करन वाली है। अज्ञान नूं मिटाउण वाले हो, ज्ञान बख्शण वाले हो, ज्ञान स्वरूप हो, परमात्मा दा रूप हो जिहड़ा तुहाडी शरण विच आउंदा है, उहदे ते रहम करदे हो। और भाई नंद लाल कहंदे ने अजमतश, दो लफ्ज ने अजमत ते अश। अश दा मतलब उन्हां दी अजमत करामात बिजली दे चमकारे वर्गी है, भाव बेअंत है, बहुतात विच है।
ਹੁਣ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰੂ 'ਚ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਸ ਈਸਾਈ ਬੜੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਪੈਸਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 90% ਦੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਈਸਾਈ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਕਿਉਂ? 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਉਣ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ। ਅਖੇ ਗੁਰੂ ਰੋਗ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਹੈਂਸਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵਰਗੇ ਕੋੜ ਦੇ ਭਿਅੰਕਰ ਰੋਗ ਨੂੰ ਜੀਸਸ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਲ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਦਰ ਮੁਰਦੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਕੀਤਾ ਲੋੜੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਕਦੇ ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਜੀਸਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਨੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਇਹ ਆਵਾ ਉਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆਖੋਗੇ ਗੁਰੂ 'ਚ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ, ਰੋਗ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਜਿਹਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪੱਥਰੀ ਅਖੇ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ, ਆ ਜਾਓ ਜਿਹਨੇ ਰੋਗ ਮਿਟਾਉਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵਸ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਉਧਰ ਹੀ ਦੌੜੇਗਾ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਹਮਾਕਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਆਸਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅਗਲਿਆਂ ਕੀ ਲੈਣ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਐਸਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕੇਵਲ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਤੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਿੱਖਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੀਵੜੇ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਤੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ, ਸਭ ਰੋਗ ਸੋਗ ਮਿਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਲਟੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਤੋ ਲੋਕ ਉਧਰ ਭੱਜ ਉੱਠੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ ਵੀ ਰੋਗ ਹਟਣਗੇ। ਇਹ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਐਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਬੜੀ ਸੁਖਾਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਡੱਡੀ ਮੱਛੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਕੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕੇ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਖਮਿਆਜਾ ਹਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲੱਗੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਹਜੇ। ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘਸੁੰਨ ਦੇ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਹ ਬਣ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਵਾ ਵਗ ਕੈਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਨਾ ਸੰਭਲੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ is the pervading Lord with all the spiritual, miraculous, supernatural powers। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਹਰ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਸਭ ਰੋਗ ਸੋਗ ਹਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਹੋਈਏ ਨਾ ਗੀਤ ਉਹਦੇ ਗਾਈਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਟੇਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਵਰਤਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਉਧਰ ਦੌੜ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਐਸਾ ਕੁਤਰਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਸੰਭਲ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। 10-12 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਰੋਕ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਵਰਗੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਾਮਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ।
तुसी रोज पढ़दे हो पूरी होई करामात, आप सिरजन हारै धारिया, धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिनै सवारिया। पूरी करामात दे सहित है, तैनू तन दा रोग है, मैडिकल साइंस बावां खड़ियां कर गई है, ते दवाई खा के दुआ करी गुरु रामदास अगे रोग हटेगा। मन दा सोग है, डिप्रैशन है, गोलियां नाल नहीं किसी दा दूर होया, आत्म हत्या ते जरूर करेगा गोलियां खा के। गुरु रामदास दे गीत खाई, तेरा डिप्रैशन दूर हो जाएगा। अमृत नाम सदा सुख नाला, सतगुर सेवे चूकै जंजाला। जेड़ा गुरु दी सेवा करेगा उन्हों सदा ही सुख है। आपां भाई मनी सिंह दा जिक्र कीता सी संडे दे दीवान विच। बंद बंद कटवाउणा आम बंदे दे वस नहीं है, कंडा नहीं जर सकते आप। इहदा मतलब नाम जपण वाले नूं चरखड़ी ते चढ़ के भी आनंद है, दुखां च भी सुख मिल जाता है। तो साडे रोग ते मामूली रोग ने, इन्ने दुखदायक नहीं जिन्ना दुखदायक समा शहीदां ते आया है। खैर, गुरु हरगोबिंद साहिब अजमतां दे मालक ने, बरकतां दे मालक ने, झोलियां भरन वाले ने। उन्हां वर्गी करामात किधरे भी नहीं है। बाबा पिरथी चंद ते बीबी करमों कोई ना कोई नवां जतन करते ने भी बालक श्री हरगोबिंद दा कतल कर दिता जावे। एक ब्राह्मण नूं पकड़िया, खिडावा सी, खिडाउंदा हुंदा सी। गुरु के महलां विच जाके और इतिहास दे बोल ने, सुन पृथ्वीए धीरज भई, निज कपट सनावा। हे दिज अब उपकार कर, धन लिहो मन भावा। ओ दिज, जे बालक श्री हरगोबिंद नूं मार दवें, तू खिडावा है, खाने दे विच जहर पा ते बालक दा अंत कर। आ 500 रजतपण हुण लै लै, 500 सोने दी मोहर चक, ते ओदे बाद मन भाउंदा धन मिलेगा जदों गुरु हरगोबिंद दा अंत कर दवेंगा। ते कसम उठा तू अपने जंजू दी भी ये गल किसे ना नहीं करेगा ते कर्ज नेपरे चाड़ना है। पैसा सब दा बाप हुंदा है, वड्डे वड्डे झुक जाते ने, एक कीमत है बस, किसी दी थोड़ी है, किसी दी बहुती है। तो ब्राह्मण ने पाप कर्म करन दा हीला कीता है, जंजू दी कसम खा लई है। श्री हरगोबिंद साहिब नूं गुरु अर्जन साहिब माता गंगा समेत गुरु की वडाली तो अमृतसर लै आए सन, क्योंकि उत्थे भी पृथ्वी चंद होनी कोई ना कोई घातक चाल चलते सन, श्री हरगोबिंद साहिब की मौत हो जावे। हुण खिडावे ने दही दे विच जहर पाया ते श्री हरगोबिंद साहिब नूं खिडाउंदा खिडाउंदा चबारे लै गया ते दही छकाउणा चाहुंदा है। गुरु साहिब छकदे नहीं। तो वैराग विच जदों आवाज दिती गुरां ते माता गंगा जी नूं सुणाई दिती, उन्हां सेवक घल्लिया भी वेखो की गल है चबारे। वो सेवक श्री हरगोबिंद साहिब नूं ते ब्राह्मण नूं माता जी कोल गुरां कोल लै आया। इत्थे भी अपनी करामात विखाउंदे ने श्री हरगोबिंद साहिब, अंतरजामता विखाउंदे ने। गुरु अर्जन साहिब कहंदे क्यों वैराग करदे ने? दिज आखण लगा महाराज मैं ते दही छकाउणा चाहुंदा हां, रोज दी तरह जल पानी छकाउणा है, छक नहीं रहे, जिद करदे ने। इन्ने समय च श्री हरगोबिंद साहिब ने जोर दी हथ मारिया, दही दा कौला रुड़ गया ते उथे कुत्ते ने चट लिया, वो तड़प तड़प के मर गया। इनू बाणी कहंदी है गुर पूरा भेटियो बड़ भागी, अंतरजामी सुगड़ सुजाने गुरु दी करामात है।
अंदर दे फुरने बुझदा है, जानी जान है, बुझ लिया भी दिज दे अंदर मैल है। वैसे तो श्री गुरु अर्जन देव बड़े सीत रहिंदे ने, एडे ठंडे साधु ने, तत्ती तवी भी उन्हां नूं तत्या नहीं कर सकी, किते त्योड़ी नहीं पाई मथे ते शहीदी समय। यही आख्या सी तेरा किया मीठा लागा। पर जिहड़ा नमक हरामी हुंदा ना, ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ नहीं जाता। श्री गुरु अर्जन देव पातशाह गलूए चों बचन कढ़दे ने, ब्राह्मण नमक गुरु घर दा खांदा रहा, हराम कर दिता ही, तेरे कारण ये तड़प तड़प के जीव मर गया, ते मरना तू भी इदां ही तड़प के है। गलूए मुबारक चों निकल गया बोल, ते बोल फिर गुरां दा पत्थर ते लकीर है, कौन इनू कट सकदा है। कवि संतोख सिंह गुरप्रताप सूरज ग्रंथ विच लिखदे ने, ऐसे गुर बैन भने सुनै शरोन मूड़ विप्र। मूड़ विप्र ने गुरां दे बोल सुने, उठियो सूल तेही छिन गिरियो तर पयो मोहे। उसे पल ही ढिड विच सूल उठिया ते धरती ते डिग पिया। लिटत कर हाय हाय ना सहाय, अब परयो अहर राय दुख पाए जो धरत द्रोहे। अरड़ाउंदा बिलाउंदा होया धरती ते लिटदा होया ब्राह्मण, मौत दे मूंह जा पिया। प्राण निकल गए जिवें कूकर तड़प के मरिया सी, ब्राह्मण तड़प के मर गया। इनू बाणी कहंदी है, गुर का बचन अटल अछेद। गुरु दा बचन ना कटिया ही जा सकदा, ना विन्या ही जा सकदा। मा गुरु's word is infallible। गुरु दा बचन कदे अधूरा नहीं हुंदा। जो गलूए चों निकल जावे वो पूरा हुंदा है। तड़फदा होया ब्राह्मण मोया, ते गुरु अर्जन साहिब ने अपने निर्गुण स्वरूप अकाल पुरख दा शुकराना करदे होए ये शब्द उचारिया सी। भैरो महला पंजवां। लेप ना लागो तिलका मूल, दुष्ट ब्राह्मण मूआ होए कै सूल। गुरु ग्रंथ साहिब विच करामात दर्ज है। साफ महाराज कहंदे सूल नाल मरिया है। That wicked Brahman died in pain, तड़प तड़प के मर गया, खुराक खोज मिट गया उस ब्राह्मण दा। हर जन राखे पार ब्रह्म आप, पापी मूआ गुर प्रताप। गुरु दी किरपा नाल, अजमत नाल, ताकत नाल पापी मर गया। श्री हरगोबिंद साहिब दी रखिया हुई है। ऐसी अजमत दा मालक है गुरु अर्जन साहिब। अपना खसम जन आप ध्याया, इयाणा पापी ओह आप पचाया। प्रभ मात पिता अपने दास का रखवाला, निंदक का माथा इहा उहा काला। अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਦਾਂ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਨਿੰਦਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਲਾ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਲਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ, ਮਲੇਸ਼ ਪਾਪੀ ਪਚਿਆ ਭਇਆ ਨਿਰਾਸ਼। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਕੋਈ 5-6 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆ ਪੜਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਅਸੀਂ ਖਾ ਜਾਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੈਂ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆ ਦੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓ। ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਪੜਾਉਣੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਗੁਰਮੁਖੀ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਾਈਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਔਰ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭੋਗ ਲਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ
इत्थे कई कह दिंदे गुरु भोग नहीं लाउंदा। देखो दो पक्ष प्रगट ने, एक है करी पाकशाल सौच पवित्रा हुण लावह भोगार राय, भोग लाउंदा है गुरु। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वो जदों अरदास हुंदी है वो कह दिंदे ने प्रवान करो, संप्रदावां कहंदियां भोग लाओ। कई चंगे भले प्रचारक कह दिंदे ने गुरु भोग नहीं लाउंदा। पहलां ते मैं एक गल दस दवां भी जेड़ा तर्क एक साखी ते लगेगा वो दूजी ते भी लगेगा। जिस टूल नाल तुसीं सज्जी कंध सुटोगे खब्बी भी डिगेगी। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਭੁੱਖ, ਤੁਸੀਂ ਰਟੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣਾ, ਕੀ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲਿਆਓ ਇੱਧਰ ਛਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਭੋਗ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲਿਆਓ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕੀਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਡਏ ਨੇ, ਲਿਆਓ ਛਕਾਓ। ਤੋ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਿਆ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ 500 ਪੌਂਡ ਕੱਢ ਕੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲੋ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਰੋਗ ਸੋਗ ਮਿਟੇ ਰਹਿਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਾ ਕੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ 2.5 ਮੀਟਰ ਦਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਉਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਰਕ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਕਮਲਿਆਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਕਿਤੇ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਨੂੰ 500 ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਭ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਹੋਈਏ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਅਗਲਾ ਤਰਕ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਰਕ ਨੂੰ ਤਰਕ ਨਾਲ ਕੱਟੋ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਭੋਗ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਕੀਤਾ ਲੋੜੇ ਸੋ ਹੋਏ। Nothing is beyond Guru Granth Sahib. Whatever he desires comes to pass. ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਦਾ। ਯਕ ਅਰਜ਼ ਗੁਫਤੰਗ ਪੇਸ਼ ਤੋ ਦਰਗੋਸ਼ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਕੰਨ ਨੇੜੇ ਕਰ, ਤੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਰਦਾਸ, ਤੇ ਉਹ ਭੋਗ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਿੱਖ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਓ ਵੀ ਆ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕੋ, ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਭਾਵੇਂ ਆ ਜਾਣ ਕੜਾਹ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਤੋਂ ਅਕੀਦਾ ਘਟੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਣਾ। ਉਦਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਛਕਾਈ ਜਾਓ, ਤਲਵਾਰ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਛਕਣਗੇ। 7 ਬਗਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਦੇਗ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਭੇਟਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਟਾ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਕਮਲਿਆਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਕੇ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਗੁਰੂ। ਜੇ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਹਿ ਕੇ ਵਡਿਆਇਆ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਸਮਰੱਥਾ, ਮਾ ਗੁਰੂ ਇਜ਼ ਆਲ ਪਾਵਰਫੁਲ। ਗੁਰੂ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਭੋਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ? ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣੇ ਭੋਗ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਰਤਾਓ। ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਤਬ ਹੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੰਗਾਇਓ, ਮਨ ਪੰਚ ਤੋਲ ਕਰ ਲਿਆਇਓ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗਿਆ ਆ, ਭੋਗ ਲੱਗਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਕਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਰਤਾਓ, ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਆਪ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵੇਖੋ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਪੁਨ ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਢੇ ਭਾਖਾ, ਮੈਂ ਜਾਟ ਘਾਸ ਕੋ ਰਾਖਾ। ਮੈਂ ਜੱਟ,
खेती करन वाला। ते मैनू महाराज विद्या किथे आउंदी है, मुझ पढ़ने कछू ना आवे, क्या जानो कहाँ पढ़ावे, मैं की पढ़ावांगा इन्हां नूं। अनपढ़ सन। पर दूसरी तरफ तुसीं 15 भगतां चों वेख लो, तकरीबन ही शूदर ने, ते शूदर ते मंदिर विच जा नहीं सी सकदा। ते उन्हां समयां च मंदिर ही गुरु कोल हुंदे सी, स्कूल ते हुंदे नहीं सी इदां भी जिहड़ी मर्जी जात दा बंदा पढ़ लवे। उत्थे ब्राह्मण ही पढ़दे सी ते पढ़ाउंदे वड्डी गल छत्तरियां नूं, शूदर वैश नूं नहीं सी पढ़ाया जांदा। ते हैरानी है भी कबीर जी संस्कृत विच बाणी उचार जांदे ने जिहड़े अनपढ़ ने। इहदा मतलब महापुरुषां ने जदों चौंकड़ा लाउणा है ते बाणी दे झरने अंदरों फुट पैंदे, भावें पढ़े होण जां ना पढ़े होण। सो तां मैं कहना हुन्ना भी तुहाडी ग्रैमर, तुहाडी डॉक्टरेट, तुहाडी दुनियावी विद्या गुरु ग्रंथ साहिब ते लागू नहीं होनी। ये की है? इत्थों दी बाणी नहीं है। जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी, ज्ञान में लवे तां संख्या लैनी पैंदी। तू पंजाबी दी एमए भी कीती होवे, तू शुद्ध नहीं पढ़ सकदा बाणी। तैनूं पता ही नहीं है मुहारनी दा उचारण की है। पर असीं ना बहस करदे, मैं ते ताबिया च बह के बाणी पढ़नी, कौन हुंदे मैनूं रोकण वाले? गुरदारे वालियां दी की जुरत है रोकण मैनूं? ते मैं कई बार बेनती करदा ना भी भाई तू चल जुरत ते की साडी, तैनूं रोकीए, तू है कौन है? मैं ते डॉक्टर हां जी, मैं BDS कीती है, डॉक्टरेट कीती है, मैं दंदां दा डॉक्टर। ते मैं कहा भी जे मैं तेरे क्लीनिक विच आके आखां भी परां हो जा पलास जिहा, मैनूं फड़ा, अज तों दंद मैं कड्ढने पाउणे ने, कहंदा हासो ही नहीं बात, तुसीं डॉक्टर नहीं हो। ते मैं कहा तूं फिर गुरु दा ग्रंथ ही नहीं है। अपने प्रोफैशन विच तूं नहीं किसे नूं दखल देण दिंदा, ते जिहड़ा गुरद्वारे प्रोफैशन है ग्रंथियां दा, पाठियां दा, सेवादारां दा, उन्हां नूं तूं धक्के मारी जाना। ये भी एक प्रोफैशन है। सो इस गल नूं समझिया करो। फिजियोथैरेपिस्ट दंदां दा इलाज नहीं कर सकदा, डेंटिस्ट हड्डियां दा इलाज नहीं कर सकदा। आपो अपनी फील्ड विच पकड़ हुंदी है। इसे करके तेरे कोल होवेगी दुनियावी विद्या, पर यह देव बाणी है, इहदी संथ्या लैनी पैंदी है। जिन्हें कदे कुत्ते नूं सोटी नहीं मारी, वो गुरु घर दी मर्यादा विच दखल दवेगा जी, मैं इदां करना उदां करना। तुहाडा जे तां ये प्रोफैशन है, दखल दे सकदे हो, ते जे नहीं ये प्रोफैशन, मत्था टेको, सेवा करो, ते वाहिगुरू वाहिगुरू करो, दखल देण दी लोड़ नहीं है। जिवें तुसीं अपने प्रोफैशन विच दखल पसंद नहीं करदे, इसे तरह ही गुरु घर दा एक सिद्धांत है। जां इस सिद्धांत विच पक्के हो, जिवें तुसीं MBBS करदे हो, डॉक्टर बनदे हो, जां ते सिखो, बाणी पढ़ो, संथ्या लो, दखल दो, पर नहीं इधर प्रोफैशनली इनवॉल्व नहीं होना, उदां दखल देना आपां सारे आ जाने हैं। सो बाणी झरने ने जिहड़े प्रगट हुंदे ने। ना कबीर जी पढ़े, ना सदना जी पढ़े, कसाई ने, जात नीवी है ब्राह्मण अनुसार। रविदास जी चमियार ने ब्राह्मण अनुसार नहीं पढ़े। नामदेव जी शिंबे ने ब्राह्मण अनुसार नहीं पढ़न दिता गया। पर बा कमाल अल्फाज ने उन्हां दे बाणी विच। दुनियावी विद्या चों ब्रह्म ज्ञान नहीं पैदा हुंदा, पर ब्रह्म ज्ञान चों दुनियावी विद्या पैदा हो जाती है। जिवें नदी चों सागर नहीं पैदा हुंदा, सागर च हज़ारां नदियां मिल जांदियां ने। बाबा बुढ़ा अनपढ़ ने, पर गुरु नानक साहिब ने जदों 12 वरियां दी उम्र च छाती ना ला के आख्या सी ना, तू बुढ़ा है, बूढ़ा नहीं है, ते बुढ़े दा भाव बजुर्गियां वाला, उदों ब्रह्म ज्ञान हो गया सी, सारियां विद्या प्रगट हो गईयां सन। पर निमरता है, कहंदे मैं घाया, मैं खेती करन वाला तुहाडा सेवादार, मैं इन्हां नूं की पढ़ावां। बाणी कहंदी है, नानक सो सूरा वरियाम, जिन विचों दुष्ट अहंकरण मारिया। वड्डा सूरा वो है जिहदे च हंकार नहीं। बाबा बुढ़ा जी ऐसे महापुरुष ने, और जिहदे च हंकार नहीं, गुरमुख नाम सालाहे जन्म सवारिया, उन्हां दा ही जन्म सौरदा है, सफला है। जिहड़े हंकार मारदे ने, आप ते मुक्त ने, कहंदे आप होआ सदा मुक्त, सब कुल निस्तारिया। कुल्लां भी तर जांदियां उहदियां। जिहड़ा निर्माण हो जांदा है, they save all their ancestors,
आप ते वो मुक्त ने, परिवार नूं भी तार लैंदे ने। फिर गुरु अर्जन साहब ने जवाब दिता, श्री अर्जन सुनकर भाखै, तुम सकल शक्त को राखै। बाबा बुढ़ा जी तुसीं सब शक्तियां दे मालक हो। इनू गुरु ग्रंथ साहब की कहंदे ने, ब्रह्म ज्ञानी ऊच ते ऊंचा, मन अपने है सब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी उच्चों उच्चा हुंदा, चाहे निर्माणता विच आखे मैं नीवा हां। बाबा बुढ़ा जी ने सिर झुकाया, बचन मन्निया। गुरमुखी पढ़ाउण लई ना श्री हरगोबिंद साहिब नूं पट्टी ते 35 लिखी, एक ओंकार तो लैके डाढ़े तक 18 10 20 लफ्ज लिख दिते। गुर अगर निवायो माथा, गह पटिया अपने हाथा। श्री हरगोबिंद साहिब नूं सिर झुका के भावना दे नाल कहंदे, जी आ पट्टी पढ़ो, सब 35 लिख कर दीनी, हर गोविंद जी कर लीनी। तो गुरां ने हथ विच फड़ लई। हैरानी इस गल दी है, गुर प्रताप सूरज ग्रंथ दे बोल ने, पहले दिन 35 पढ़न लई दित्ती ते गुरां ने पढ़ लई। दुनियावी बच्चा हुंदा, प्रनाउंस करना सिखाउणा पैंदा, अड़ाड़ा ही नहीं कहना आउंदा, कईयां नूं उमर लंघ जांदी है, गंगा नहीं कहना आउंदा, नाना नहीं कहना आउंदा। अंग्रेजी च लफ्ज बने ही नहीं इस ध्वनि दे, इस आवाज दे। बड़ा छोटा जिहा दायरा अंग्रेजी दा, पंजाबी सागर है। और मैं सब तो सौखी भाषा अंग्रेजी नूं समझदा, जिहड़ी सिखणी बड़ी सौखी है ही कुछ नहीं, विस्तार ही कुछ नहीं है। बाणी दे अर्थ कर लो, एक एक अर्थ है। आ गुरमुखी विच उतर जाओ, संत गुरबचन सिंह पिंडरां वाले, होर महापुरुष 15 15 20 20 अर्थ। गुरमुखी दा, परशियन दा, संस्कृत दा विस्तार सब तो ज्यादा है। बाकी बड़ियां हल्कियां भाषा ने। वो 35 जिहड़ी कुछ समा लगदा है सिखण लई, वो लिख के दित्ती ते महाराज पढ़ती। दूजे दिन कहंदे लगा मात्रा सिखाउणियां, लिख के दित्तियां महाराज ने, वो भी पढ़ दित्तियां। ते तीजे दिन पातशाह नूं कहंदे वाक लिखो, ते वो भी लिख दित्ते। हैरान है संगत समेत बाबा बुढ़ा जी भी, 3 दिनां च सारी खेड़ खत्म। इदां है, गुरु सागर है, जल धरती दे हेठां सारे है, प्रगट करन लई कुआं पुट्टना पैंदा है। वनस्पति विच अग है, तीली लाउणी पैंदी है। सर्ब विद्यावां दे मालक अकाल पुरख आप श्री हरगोबिंद बने ने। तो बाबा बुढ़ा जी ने ते केवल तीली लाई है। इतिहास दे बोल ने, जो लेकर हाथ पढ़ावें, तत्काल सो बात सुनावें। ये की कारण है? कवि संतोख सिंह जी इदां बच्चे ते नहीं कर सकते, गुरु किवें करदा है? बच्चों की तो उम्र लंघ जाती विद्या सिखदे। कहंदे सब विद्या कारण जोई, लग पढ़न गुरमुखी सोई। सारियां विद्यावां बनाउण वाला अकाल पुरख अज आप गुरु हरगोबिंद बन के गुरमुखी पढ़ रहा है। इस करके इनू सिखण दी लोड़ नहीं, सब कुछ प्रगट है, ये सब कुछ जानदा है। गुरु ग्रंथ साहब नूं पुछो जी इदां हो सकदा? महाराज कहंदे गुरुदेव दाता हर नाम उपदेसै, गुरुदेव मंत निरोधरा। गुरुदेव दाता है, गुरुदेव करता सब पाप हरता। गुरु इज द क्रिएटर, गुरु इज द डूअर, गुरु इज डिवाइन। गुरु वर्गा कौन है? ते जिहड़ा आप करता हरता है, विद्यावां बनाउण वाला है, उहदे लई की मुश्किल है? सो ऐसे रहमतां दे मालक, अज़मतां दे मालक श्री गुरु हरगोबिंद साहिब ज्ञान बख्शण वाले ने। उन्हां नूं पढ़न दी लोड़ नहीं, केवल मनुखे जामे चाहे ने ते कौतक करदे ने। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर किरपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रगाश। गुरु ते ज्ञान दा दाता है, गुर करता गुर करना जोग। गुर परमेश्वर है भी होग, गुरु परमेश्वर है। गुरु इज
and always shall be the transcendent Lord। हर युग विच है, खुदा दा रूप है, करन जोग करता, जो हो रहा है जो होवेगा गुरु दे हुक्म विच सारी खेड चलदी है। सो इदां श्री हरगोबिंद साहिब ने विद्या प्रगट की है। समा आया 1620 बिक्रमी वैसाख वदी सप्तमी दा, शहीदी श्री गुरु अर्जन देव जी दी। बड़े कारण ने, जे तुसीं मुख कारण जानना चाहुंदे हो ते ओह है जहांगीर दी सिख धर्म नाल ईरखा, जो आप ऑटोबायोग्राफी विच लिखदा है। फारसी दी पुस्तक है तुझके जहांगीरी, उहदी डायरी है, नित दी जो करनी सी वो लिखदा हुंदा सी। अमीर लोकां दी आदत हुंदी है ना भी अज आ कीता ते अज ओ कीता, वो लिखी जांदे ने। वो साफ लिखदा है, कहंदा है भी गोइंदवाल विच जो दरियाए ब्यास दे कंढे ते है, गुरु अर्जन नामी एक हिंदू पीर शैखी दे भेस विच रहिंदा सी। चुनाचे सीधे सादे हिंदुआं विच बहुत सारे मूर्ख ते बेअकल उहदे सेवक बन गए, मुसलमानां दे टोले भी उहदे सेवक बन गए। ते ओह लिखदा है सारे पासियां तो झूठ दे पुजारी उत्थे आउंदे सन ते तिन्ना चौहां पुश्तां तो झूठ दी दुकान उन्हें गर्म कीती हुई सी। तो मैं चाहुंदा सी जां ते इहदा कतल कर दिता जावे ते जां इहनूं मुसलमान बनाया जावे। असल कारण यह है शहीदी दा। बहाने कई बने ने, बहाने कुछ ऐसे सन। इको नक्शबंदी मत संप्रदाय है इस्लाम दी, उन्हां वेख्या साडा प्रभाव नहीं रहा, लोग सिख बन रहे ने, उन्हां भी कन भरे जहांगीर दे। एक सखी सरवर मत, वो कबरां वाले, पंजाब च काफ़ी कबरां जिन्हां दियां, नगाहे वाला पीर भी उसे नूं ही कहिंदे ने, उसे नूं ही लालां वाला पीर कह दिता जांदा है, उसे नूं ही सखी सरवर कह दिता जांदा। ये सारे ना उसे दे ने। अच्छा, वो अपने पंजाब जो इधर रह गया है ना भारत विच, इत्थे नहीं आया कदी। माई आयशा जैनुल अबदीन दे घर एक बच्चे दा आगाज होया, सैयद अहमद सुल्तान। ये कोई 1125-30 दी गल है। ये जेड़ा सैयद अहमद सुल्तान सी, ये बंदगी वाला सी। इन्हें एक डेरा बनाया पिंड नगाहे, डेरा गाजी खां इलाका अजकल दा पाकिस्तान। और ये नगाहे वाला पीर करके मशहूर होया। लाला वाला पीर, लख दाता सारे दे नाम ने। 1170-80 दे इर्द गिर्द इन्हां दी मौत हुई है। पर पंजाब विच इन्हां दियां काफ़ी कबरां ने। असल विच कबरां नालों लोग टुटण लग पए। पंजाब दा सब तो वड्डा केंद्र सी भाई मंझ दा घर। तीरथा चौधरी उहदा नाम सी, मंझ उहदा कलैन है, आगू सी। हुशियारपुर दे इलाके पिंड कंगमाही दा रहण वाला, लोकां नूं इकट्ठे करके निगाहे लिजांदा हुंदा सी। जिद्दण गुरु अर्जन साहिब दे दिदारे होए, पता अखां नाल की वेख्या इहने? अमृतसर कोड़ी हैंसन डिजीज दे मारे। उदों इलाज नहीं सी कोड़ दा, ना मुराद बीमारी सी। अजकल ते एंटीबायोटिक आ गए ने, अज कोई होर रोग पैदा हो जाता, उहदा इलाज नहीं। इदां चलदा ही आया दुनिया ते। उन्हें वेख्या भी गुरु अर्जन साहिब दे चरण परस के कोड़ी दा कोड़ दूर हो गया है। गुरु दी नजर पैंदियां कोड़ दूर हो गया। किरपा कटाख अवलोकन कीनो, दास का दुख विदारियो। जदों रोग सोग मिट गए, मन नूं शांति मिली इस दर ते आके, कहदा मैनूं सिख बना लो। गुरु अर्जन साहिब कहंदे, ओ भाई मंझ सिखी ते सिखी नहीं टिकदी, तू तुरकां दा सिख है, मैं तैनूं सिख किवें बनावां? पहलां तुरकां नूं घरों कढिया, फिर गल करदे।
ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਬਰਾਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਫਿਰ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਚੰਦੂ, ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਣਿਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਕੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਾਲ ਕਰ ਆਏ, ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਦੀ ਵਧਾਈ, ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਇੱਟ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਲਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਫਕੀਰ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਲੋਕ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਏ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮੂਲੰ ਅਹੰਕਾਰੰ ਪਾਪਾਤਮਾ। ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀੜਿਆਂ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਜੂਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਜੀਓ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਵਈ ਵੇਦ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵੇਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਿੱਡਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਆਪਣੀ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੁਭਾਅ ਰੱਬ ਦਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰੀਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਸਮਝਦਾ, ਆਪਦਾ ਮਿਟਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੌਣ 'ਚ ਸਰੀਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਨਿਵਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਿਰ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗਨੀਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਗਰੀਬੁਲ ਪਰਸਤੋ ਗਨੀਮੁਲ ਗੁਦਾਸ। ਸੋ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ। ਚੰਦੂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਨ ਭਰੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ 1660 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, 1661 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਵਿੱਚ ਬੀੜ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਰਾਮਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਵਾਈ। ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਕਾਨਾ, ਪੀਲੂ, ਛੱਜੂ ਤੇ ਹਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਤੇ ਹੋਏ ਫਿਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਸੋ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸ਼ਰੀਆਤ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਇਹ ਲੋਕ। ਤੋ ਵੇਖੋ, ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਰਚ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਲਿਖਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਕੰਨ ਭਰੇ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਬੜੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣੇ ਨੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ। ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਜਾਣੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ, ਹਰ ਕਰਤਾ ਆਪ ਮੋਹ, ਕਢਾਏ ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਰੀਸੈ, ਹੋਰ ਕੱਚ ਪਿੱਚ ਬੋਲਦੇ, ਸੇ ਕੁੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਝੜ ਪੜੀਐ। ਕੱਚੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ। ਅਖੀਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਹਾਨਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਵੀ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਖੁਸਰੋ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ੰਦ। ਬਗਾਵਤ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਅਯਾਸ਼ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਵੇਸਵਾਗਾਮੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਸਦਾ ਹੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ। ਇੰਨਾ ਮਦਹੋਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਾਂਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਖੁਸਰੋ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ, ਉਹਨੇ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਤੇ ਇਹ ਮਾਂ ਸਾਂਭਣ ਡਈ ਹੈ ਮਤਰੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਮਾਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੰਨ ਭਰੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੁਝ ਐਸੀ ਹੈ, ਖੋਪੜ ਮਿੱਧ ਕੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਤਖਤ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ
नशे विच धुत रहन वाला बंदा माई दी कथनी विच आ गया। उन्हें हुक्म दे दिता सिपाहियां नूं भी इहनूं गिरफ्त विच लो, इहदा सिर कलम करना है। ते खुसरो दौड़ उठिया ते खुसरो बाबत एक झूठी चिट्ठी मुर्तजा खान ने, नाम शेख फरीद बुखारी है ते खिताब मुर्तजा खान मिलिया सी उहनूं। उन्हें लिखी है जहांगीर नूं भी जदों दरियाए ब्यास तो खुसरो लंघिया है ना, ते श्री गुरु अर्जन देव ने आशीर्वाद दिता है, तिलक लाया चंदन दा, सरोपा दिता, लाख रुपया मदद दिती है ते नाल वर दिता भी तू दिल्ली दा बादशाह बनेगा। झूठी कहानी बना लई। वेखो जे गुरु घर आया भी हुंदा ते बाणी कहंदी है जो सरनी आवे सर्व सुख पावे। भुखा सी लंगर छक लैंदा, नंगा सी बस्तर लै जांदा, पर जिहड़ी तिलक वाली बात है ये वाधू कट लई गई। 99% इतिहासकार कहंदे ओ गोइंदवाल साहब गुरां कोल आया ही नहीं है। हुण जहांगीर ने रंचक मात्र भी ये ख्याल नहीं किया भी मैं एक बार इन्वेस्टिगेशन करा, पता ते लवां भी इदां होया भी है। बस वो जिहड़ा अंदर ख्याल सी भी जे सिक्खी दे बाग नूं उजाड़ना ते पहला माली नूं मारना पैना है। उस अग दे विचों फरमान जारी किया। फारसी दे बोल ने फरमूदम के ऊरा बास्यास तो यसा रसानंद। फरमाया जहांगीर ने, अमर करदम हुक्म किया जहांगीर ने, मुर्तजा खान दे हवाले किया। गुरु अर्जन साहब नूं जायदाद जब्त करन दी बात पाई, परिवार नूं गिरफ्त विच लैण दी बात पाई अते कहा सियासत ते यासा दे तहत कतल करना है। इहनूं मंगोलियंस दी ये धारा है ना, महापुरुष नूं कतल करना ते लहू साड़ो उहदा। जे जमीन ते कतरा डुल गया लहू दा ते उहदे चों भूत प्रेत पैदा होणगे ते कातल नूं सजा देणगे। ये सोच है शैमनिज्म दी, मंगोलियंस दी। कोई 12वीं 13वीं सदी च धारा सियासत ते यासा दी उन्हां शुरू कीती सी चंगेज खान ने। इसे करके जदों मुर्तजा खान दे गुरु हवाले कीते गए, चंदू कहंदा मैं हिसाब किताब बराबर करना है। हवेली लै गया गुरां नूं, तत्ती तवी ते बाया, देग चो बालिया, लहू दा कतरा कतरा साड़िया। ये सियासत ते यासा दे तहत कतल होया सी। गुरु अर्जन साहब शहीद किए गए। गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह दी शहीदी, उन्हां दी अजमत हैरान रह जाईदा है। तत्ती तवी है, लकड़ां तत्तियां ने, जेठ हाड़ दी गर्मी, लू वगदी है, चंदू तत्ता है, मुर्तजा खान समेत जहांगीर तत्ता ते गुरु अर्जन इदां तत्ती तवी ते बैठा है जिवें किसे बगीचे विच गलीचे ते टिकिया होवे। आनंद विच, रंचक मात्र दर्द नहीं है, इनू होवेगी भी नहीं क्योंकि सुखमनी दा करता है, सुख बख्शण वाला है। आनंद दे विच पातशाह बैठे सन। आख्या सी मियां मीर ने, इन्नी करामात, इन्नी अजमत, फिर भी जर रहे हो। तुसीं चाहो ते एक नदर दे नाल जहांगीर मिट्टी च मिला दिओ। हरण भरण जाका नेत्र फोर। ते गुरु साहब कहंदे करामात ते इन्नी है साईं मियां मीर, नित ही करदा हां। मेरे प्यारे ते कोई मुश्किल आवे ते मैं अग नूं भी सीत करदा हां। बाबा बिधी चंद पट्टी भट्ठ विच बैठे सन, बलदे भट्ठ विच। पिंडां च पट्ठियां हुंदियां सी ना, माइयां फुल्ले कढ के बच्चियां नूं दिंदियां हुंदियां सन मकई दे। भट्ठ च बैठे ने ते कोल गुरु घर दी अमानत है, दशाले ने ते गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह दे फरजंद श्री हरगोबिंद गुरु की वडाली अपने शरीर ते ठंडे जल दियां गागरां पवा रहे ने। इतिहास गवाह है, रंचक मात्र भी बाबा बिधी चंद नूं सेक नहीं सी लगा। भट्ठे वाले ने आख्या जी ओ बाबा सरकार लभ रही है तैनूं, किथे टिकना है, कोई इथे घर विच पनाह नहीं दवेगा।
ये गुरु हरगोबिंद दा सिख है ते भट्ठे विच ही बह जा, तैनू अग की आंदी है? ते बाबा बह गया, भरोसा है अपने गुरु ते। किथे सेक ना लगन देण ते आप उसे अग ते बैठे सड़ रहे ने शरीर करके। क्योंकि जे गुरु साहब अग नूं ठंडिया कर दिंदे ते लोकाई ने आखना सी उदां खुदा दा रूप बनिया बैठा सी, मौत तो डर गया, अग तो डर गया। असल विच गुरु अर्जन साहब कहंदे शरीर मिटना ही है अज नहीं ते कल, जोत करके मैं सदा प्रगट हाँ। हुण मैं एक बेनती कर ही लवां। ईसाई कहंदे ने साडा जीसू रोग सोग मिटाउंदा है, आपां मनदे हां, किसे धर्म ते तर्क नहीं करदे। पर एक गल जिहड़ी चुभदी है वो ये है, जिहड़ा वो साडे गुरुआं नूं शैतान कहंदे ने, ते वो कहंदे ने भी जीसस सब तो वड्डा। क्यों वड्डा? आखे जी तुहाडी बाणी च लिखिया सिरियस केत जगत के ईसा। पता उन्हां नूं है, वो भोले नहीं। पहली गल ते ये रचना विच ईसा लफ्ज संस्कृत दे ईश्वर तो बनदा है, इहदा कोई संबंध ही नहीं है इंग्लिश नाल। ते जे यही ईसा जीसस क्राइस्ट लई है ते मान लो भी ईसा फिर हिंदू होवेगा, ये तो संस्कृत दा लफ्ज है। फिर सिरी आसकेत शस्त्रधारी, जेदा झंडा निशान धारी है, जेड़ा तलवार पकड़न वाला। हुण जीसू जी महाराज ने केड़ी जंग लड़ी है तलवार फड़ के? ये तो कलगीधर सिरी असकेत अकाल पुरख की गल कर रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहब कहंदे ने गुरु अर्जन लॉर्ड है, परमेश्वर है। बाइबल कहंदी है जीसस क्राइस्ट इज द सन ऑफ लॉर्ड, रब दे फरजंद ने। हुण मैं उच्चा नीवा नहीं किसी नूं कहना, फैसला तुसीं करना है। माउंट ऑफ ओलिव्स दे उत्ते सलीब ते चढ़े ने जीसस क्राइस्ट, इदां किल खुबे होए ने, शहीद होए, वड्डी कुर्बानी है। इसे करके ईसाई मत बड़ा वधिया, शहीदां दे लहू नाल ही धर्म वधदे ने। पर जिहड़ी गल सलीब ते कही ना, कहंदे ओ लॉर्ड प्लीज टेक दिस कप ऑफ पेन सफरिंग्स अवे फ्रॉम मी, ये दर्द दा प्याला दूर कर लै, नहीं सिया जांदा। ये है सन ऑफ लॉर्ड दी बात। ते हुण लॉर्ड दी बात करां, गुरु अर्जन परतख हर। गुरु अर्जन इज द सुप्रीम लॉर्ड। तत्ती तवी ते बैठा शरीर सड़ गया ते गलुए दे बोल सन तेरा किया मीठा लग गया। रंचक मात्र भी सी नहीं कही। हुण तुसीं दसो भी रोग सोग किन्ने दूर करने ने? सियाणे बनो। बगानी थाली दा लड्डू वेखण नूं बड़ा रंगदार ते मिठा लगदा है, अपना फिक्का लगन लग पैंदा है। पर याद रखियो, चख लोगे ते पता चलेगा सिखी दे तुल कोई रूहे जमीन ते धर्म नहीं है। अज एक होर नवीं गल पता लगी, हो बड़ा इस गल का दुख भी है। किसी परिवार का बच्चा मुसलमान हो गया सिखां दा, ते पता किवें गुमराह कीता इमाम ने? कहंदा साडा धर्म खुदा दा धर्म है, सिखां दा धर्म मैन मेड है। ते मैन मेड बनाया किने? साडे प्रचारकां जिहड़े कहंदे गुरु नानक आम इंसान है। तो तुसीं गुरु नानक नूं आम कहोगे तो फिर मैन मेड ही धर्म हो गया ना, खुदा दा ते होया ना। ते गुरु नानक साहब पातशाह कौन ने? गुरु नानक देव गोविंद रूप, खुदा दा रूप ने। ते खुदा दा धर्म क्यों ना होया? पर असीं नहीं सिखा सके बच्चों नूं। असीं ते पुठी मत दित्ती। गुरु नानक आखे टीचर है, इत्थे 36 टीचर तुरे फिरदे ने, हुण इत्थे भागे पूजा करन लग पवां मैं। गुरु ग्रंथ साहिब दी जगह ते बहा देवां उस टीचर नूं। सिर नवाउने आपां अपने अध्यापकां नूं जिन्हां सानूं पढ़ाया, पर सतगुरु नहीं हो, वो गुरु ने, केवल टीचर ने। ये सतगुरु ने गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु नानक साहिब। हुण तुसीं जिहदे तो विद्या लैने उहनूं गुरु कह दिंने आपां, पर वो सतगुरु नहीं है, सत स्वरूप नहीं है। सो ये साडियां गलतियां ने, प्रचारकां दीयां गलतियां ने। गुरु नानक ते अकीदा जे घट कीता है संगत दा, ते असीं कीता है। हुण रोने आ, कोई इहनूं तुरिया जांदा, कोई पखंडियां वल तुरिया जांदा, कोई देहधारियां वल तुरिया जांदा। असीं आप ही तोरिया लोकां नूं। जिहड़े घर विच होवे ही कुछ ना, उत्थे कोई नहीं टिकदा हुंदा। तुसीं रोज़ कहिंदे हो गुरु घर कुछ नहीं है।
आखे मेहनत नहीं सब कुछ मिलता है, ये मिलता है वो मिलता है, कुछ नहीं मिलता जिन्ना चिर भरा लब्ध गुरु सवार ना दवे। कुछ नहीं भोग्या जाता जिन्ना चिर गुरु कृपा ना कर दवे। इस गल नूं ज़हन विच टिका लियो। दीन दुनिया दे मालक तत्ती तवी ते बैठे ने ते कह रहे सन, योर एक्शंस सीम्स सो स्वीट टू मी। तेरी हर करनी ऐ निर्गुण काल मैनू मंजूर है, कोई दर्द नहीं इनू। हर नाम पदार्थ नानक मांगा, जिहदे कोल नाम है उन्होंने रोग सोग नहीं सताउंदे। गुरु अर्जन वर्गा कौन है दुनिया ते? इस तरह गुरु अर्जन साहब हुंदे ने शहीद। और इस शहीदी तो बाद किवें भगती दे नाल शक्ति प्रगट हुंदी है, किवें हरमंदर दे नाल अकाल तख्त प्रगट हुंदा है, मीरी किवें पीरी नाल जुड़दी है, किवें अध्यात्मक शक्ति दे नाल शरीरक शक्ति दी बात चलदी है। ये जिहड़ा शक्ति दा भांबड़ है गुरु अर्जन साहब करके ही सिख जगत दे अंदर मचिया सी, जिस करके फिर सिखां ने तलवार उठाई। ये कल दे दीवान विच आप संगत नाल सांझ पावांगे। समय दी समाप्ति है, भुल चुक दी खिमा, खंडे दी पौल छको, गुरु वाले बनो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।